Hello students, welcome to the channel English 360. I am Dheeraj Garg and today we are going to talk about the formal letters and especially the letter to the editor. So firstly, a letter to the editor falls into the category of formal letters. So I would like to tell you what is a formal letter. So as you know that letters which are written for official purposes to editors, to officials, to clients, etc. in a formal language and tone are called formal letters. And let us discuss some of the characteristics of the formal letters very briefly. Firstly, these are formal and impersonal in tone and style. I mean, there is no personal tone. These are written in formal language and etiquettes. Formal language has to be there, and there are no personal pronouns. I, my, these kind of pronouns are avoided there, and no contractions. We do not use any contractions in formal letters. Like we do not say don't, we say do not. Okay, and then we use only passive voice in formal letters. We avoid using active voice, and passive voice is preferred here. And formal linkers like therefore, nevertheless are also used to give a more organized look to the paragraph and the sentences. And then we use complex sentences instead of simple sentences. We use complex sentences with clauses, and we use non-colloquial language. What is colloquial language? Colloquial language is that language which is used in spoken English. Like we can say kid. So kid is a colloquial word. Instead of kid, we should say child or infant in written version. And then is no abbreviations. We do not use any sort of abbreviations, and no phrasal verbs and idioms. So these were some of the characteristics of formal letters, and these are some words given in the informal or formal way. And suppose if I say whole in informal English, then the equivalent formal word will be entire. Similarly, blow up is informal, explode is formal. So there are a whole you can say a lot of words here. You can go through these words very carefully. Then we have format of formal letter. So format we have already discussed, and you all are well versed with it, but still very briefly we will do it. Firstly, we write sender's address in the upper left corner. Then after leaving one line, we write date. Date's format is if I talk of today's date, then I can say 21 June 2020, or I can say June 21, 2020. If there are two numerals like 21 and 2020, then only we separate these two numerals by comma. Otherwise, we do not use any punctuation mark here. And then after leaving one line, we write receiver's address, and thereafter we write salutation. In salutation, we say dear sir or dear madam. These days we use dear words in dear word in the formal letters also. And after salutation, we write subject. Subject should not be too lengthy. It should be of 4 or 5 words, and it has to be underlined. And after subject comes the body of the letter, which is the main part of a letter. It is the soul of the letter. It is divided into 3 paragraphs usually. Paragraph 1 talks about introduction, where we introduce our topic or problem or whatever is to be written there. Then in paragraph 2, we developed our topic, we go into the detail, and in paragraph 3, finally we conclude the topic. Thereafter comes complementary clause. In complementary clause, we write yours truly, yours faithfully, yours sincerely. And after complementary clause comes signature. We put our signature here, followed by our name in block letters, and thereafter if we have any designation, then we mention that too. So this is our format of a formal letter. So this is our question. I mean, as I told you that this is a new variant that has recently been added by the CBSE to the class 10, 11 and 12 syllabus. They will give you a newspaper report or a newspaper article, and on the basis of that you have to respond in the form of a letter. So this question is, write a letter to the editor of a national daily responding to the given news article at public expense. You are Arjun or Anisha of 45 Mayur Vihar, New Delhi. So you have been given this piece of news, this news article, and after reading this news article, you will have to write a letter to the editor. So firstly, let us have a look at this news article. So this article is at public expense. Daily oil price hike is fueling negative sentiment. तो इसका मतलब क्या है? ये डेली ऑयल प्राइस हाइक के बारे में, हाइक का मतलब इंक्रीज के बारे में बात कर रहा है कि जिस तरीके से इन दिनों में देखा जा रहा है कि पिछले 10-11 दिन से क्या हो रहा है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इससे लोगों में थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहा है. तो देखिए इस न्यूज़ को हम पढ़ लेते हैं डिटेल में. Crude oil rates had hit rock bottom recently, yet petrol and diesel prices are at a 21-month high after being increased for the 10th consecutive day. A cumulative hike of rupees 5.47 and rupees 5.80 respectively. तो देखिए कहा जा रहा है कि क्रूड ऑयल के जो रेट्स है वो रॉक बॉटम हो गए हैं, मतलब काफ़ी कम हो गए इन दिनों रिसेंटली जो है. लेकिन फिर भी हमारे जो देश के अंदर क्या है, पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस है वो 21 मंथ हाई पे पहुंच गए, मतलब पिछले 21 महीनों के बाद
अब इतना रेट हुआ, इतना 21 महीनों में भी नहीं हुआ, और ये 10वां दिन है जबकि लगातार प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और टोटल हाइक इन 10 दिनों में कितना हो गया पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में? 5.47 और 5.80 रिस्पेक्टिवली। While infusion of liquidity to incentivize spending after the back-breaking lockdown months is the mantra being chanted by experts, subjecting the population to an oppressive additional burden instead confounds। तो देखिए बात तो ये चल रही थी कि स्पेंडिंग को इंसेंटिवाइज करने के लिए, मतलब लोगों के अंदर स्पेंडिंग हैबिट्स फिर से डेवलप हो, उनके हाथ में मनी आए, लिक्विडिटी को इन्फ्यूज किया जाएगा, मतलब पैसा इकोनॉमी में ज़्यादा डाला जाएगा, क्योंकि ये जो लॉकडाउन हुआ ये बैक ब्रेकिंग हुआ है, इसने लोगों की कमर तोड़ के रखती है, उनके हाथों में पैसा नहीं रहा है। ये बात थी, ये जो मंत्र था ना, ये एक्सपर्ट्स लोग थे वो चैंट कर रहे थे। चैंट का मतलब इसी बारे में बात की जा रही थी एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इकोनॉमी में थोड़ा पैसा डाला जाएगा जिससे लोगों के पास स्पेंडिंग के लिए पैसा आएगा और जिससे इकोनॉमी ट्रैक पे आएगी। लेकिन इस एडिशनल बर्डन से जो है लोगों को हैरास करना, लोगों को ऑप्रेस करना, उनको तंग करना, ये लॉजिक किसी के समझ में नहीं आता। ये लॉजिक जो है, ये चीज़ जो लॉजिक को कंफाउंड करती है। ठीक है। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हैज़ कॉल्ड फॉर अ रोल बैक, टर्मिंग द सेंटेंस डिसीजन होली इनसेंसिटिव, कमिंग एज इट डज ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो जो कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने क्या कहा है कि रोल बैक के लिए बोला गया था कि जो प्राइसेस आपने पेट्रोल और डीजल के बढ़ाए इनको वापस लिया जाए, और कहा है कि सेंटर का जो डिसीजन है वो पूरा इंसेंसिटिव है, मतलब लोगों के लिए कोई भावनाओं की कोई कदर नहीं है कि ऑलरेडी उनके पास कैश क्रंच है, पैसा उनके पास नहीं है। तो कहता है कि ये जो कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन प्राइसेस को बढ़ा रही है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस डाउन हुए हैं, फिर भी हमारे जो इंडिया के अंदर है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये इंसेंसिटिव डिसीजन है, मतलब लोगों की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। और कहता है कि दैट सीम्स आउट ऑफ द क्वेश्चन मच लाइक एनी फोर्थराइट आंसर ऑन व्हाट हैज नेसेसिटेटेड दिस कंटिन्यूअस डेली अपटिक। तो कहता है कि अब इस बात का जवाब कि ये डेली का जो है ना अपटिक क्यों हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो ये कहता है कि ये आउट ऑफ क्वेश्चन बात लग रही है, इसका कोई जवाब नहीं आ रहा, मतलब जैसे गवर्नमेंट इस पर कोई भी कॉमेंट नहीं कर रही है। अराउंड 70% ऑफ द रिटेल प्राइस ऑफ फ्यूल कंप्राइजेज टैक्सेस। तो कहता है कि जो फ्यूल है उसके रिटेल प्राइस का जो 70% जो प्रोपोर्शन है वो टैक्सेस का है, मतलब जो हमारे देश में इतनी कीमत है पेट्रोल और डीजल वगैरह की, तो उसका 70% जो है वो टैक्सेस में जाता है। Oil firms resumed the daily revision of prices on June 7, following an 82-day break during the lockdown when retail rates were left untouched। तो जो ऑयल फर्म्स थी उन्होंने क्या किया, 7 जून को जो है इसके प्राइसेस से छेड़छाड़ करनी थोड़ी स्टार्ट की। 82 डेज का क्या था, एक ब्रेक था लॉकडाउन के दौरान, जब जो रिटेल रेट्स थे उनको मतलब अनटच रखा गया था, मतलब उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी, जितना जो रेट चल रहा था पेट्रोल डीजल का वही चल रहा था। और 7 जून को जो है वो ऑयल प्राइसेस ने थोड़ा सा इनकी रिविजन स्टार्ट की, मतलब रेट्स को चेंज करना स्टार्ट किया। The freeze was imposed in mid-March soon after the government effected a considerable hike in excise duty on petrol and diesel to shore up its finances। तो ये जो फ्रीज था, फ्रीज का मतलब किसी चीज़ को फिक्स करके रख दिया गया था भाई, अब इसके बाद एक बार प्राइसेस ना तो कम हो गई ना ज़्यादा हो गई। ये मिड मार्च में मतलब किया गया था इम्पोज। और किसके बाद किया गया था कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक एक्साइज ड्यूटी जो होती है पेट्रोल और डीजल पे उसको काफ़ी बढ़ा दिया था। उसके बाद ये फ्रीज आया था, और गवर्नमेंट ने इस ड्यूटी को किस लिए बढ़ाया था, अपने फाइनेंसिस को शोर अप करने के लिए, मतलब अपने फाइनेंसिस को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। ठीक है, पैसा थोड़ा सा ज़्यादा मतलब उनके। The impact of the hike was not passed on to the consumer, but they did not benefit from record fall in crude oil prices either। कहता कि जो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर पे पास नहीं किया गया, मतलब पेट्रोल के वैसे दाम नहीं बढ़ाए गए थे, लेकिन जो पेट्रोल के जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस गिरे तो उसका बेनिफिट भी नहीं मिला था जो लोगों को मिलना चाहिए था। Several state governments including Punjab have now hiked cess on fuel to fill empty coffers। The user is again at the receiving end and all marketing companies have little to gain। तो काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी क्या कर दिया, जैसे कि पंजाब का अगर एग्जांपल लें, उन्होंने भी जो सेस होता है जो एक तरह का टैक्स ही होता है इस पर, वो फ्यूल पे वो भी बढ़ा दिया है ताकि उनके जो खजाने खाली हो गए उनको भरने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस के दौरान जो है वो स्टेट्स बंद रहे थे तो उनके पास इतना पैसा अब नहीं बचा था, तो उसको उनको ज़्यादा मनी कलेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया था। और इसका जो नुकसान है वो किसका हो रहा है, इसके रिसीविंग एंड पे कौन है, रिसीविंग एंड का मतलब इसका जो नुकसान हो रहा है वो यूज़र को हो रहा है, और ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज है उनको भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। Oil price decontrol is a curious instrument in India. When global prices go up, the increase is passed on to consumers. When they go down, taxes and levies are imposed. The only gainer is the government। कहता है कि जो ऑयल प्राइस का डीकंट्रोल है वो भी एक अजीब सा इंस्ट्रूमेंट है इंडिया के अंदर, एक क्यूरियस सा इंस्ट्रूमेंट है, समझ नहीं आता किसी के। जब प्राइस बढ़ते हैं तो वो प्राइस कंज्यूमर्स के को भी पास ऑन कर दिया जाता है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इधर पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ा दिए जाते हैं, और जब वो कम होते हैं तो उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता। गवर्नमेंट क्या कर देती है, उन पे टैक्सेस और लेवीज और लगा देती है, तो अल्टीमेट जो विनर है, जो फ़ायदा होता है वो गवर्नमेंट को ही होता है। ठीक है,
कंज्यूमर हमेशा रिसीविंग एंड पे रहता है। जैसे कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बात करिए, एक कहता है कि उसका एक एग्जांपल लिया जा रहा है, एटीएफ प्राइसेस वर कंसिस्टेंटली रिड्यूस्ड व्हेन नो एयरलाइन वाज ऑपरेटिंग पैसेंजर फ्लाइट्स बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। Just days after commercial flights were allowed in May end, a 56% increase was announced. Gaining at public expense is a rather uncomfortable tag, but this does not seem to bother the central and state governments much. तो कहता है कि एटीएफ का एग्जांपल लें तो जब मतलब एयरलाइन ऑपरेट नहीं कर रहा था तब तो इनके प्राइसेस रिड्यूस कर दिए गए थे, और जैसे ही कमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट हुई लॉकडाउन के बाद मई एंड में, तो इनमें 56% का हाइक जो है वो अनाउंस कर दिया गया। तो कहता है कि पब्लिक एक्सपेंस को मतलब लोगों का खर्चा बढ़ा के या लोगों के लिए चीज़ें महंगी करके जो गेन करना है वो एक थोड़ा अनकंफर्टेबल टैग तो है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ का गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स पे कोई असर नहीं हो रहा है। तो देखिए, नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द हाइक इन यू कैन से पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, एंड गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इट्स बिट टू ईज द प्रेशर ऑन द सिटीजन्स। तो इस एक आम आदमी की तरफ से एक लेटर लिखना है इसमें कि गवर्नमेंट को क्या है, थोड़ा सा इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए इतना, उनको थोड़ा सा कंसिडरेट होना चाहिए। और ये जो प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर डाउन जा रहे हैं तो इसके बावजूद गवर्नमेंट इन्हें क्यों बढ़ा रही है इस आवर ऑफ क्राइसिस पे, ठीक है। तो हमें इस तरीके से एक लेटर लिखना है एडिटर को, ठीक है, कि गवर्नमेंट को इस तरीके से प्राइसेस नहीं बढ़ाने चाहिए, जबकि इस टाइम लोगों को ज़रूरत है कि चीज़ें अगर सस्ती उनको प्रोवाइड की जाए तो उनके लिए उतना ही बेटर रहेगा। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस ये जो है कि write a letter to the editor of a national daily responding to a given news article at public expense and you are Arjun Anisha of 45 Mayur Vihar New Delhi। तो यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है मैं वही ले रहा हूँ, 45 मयूर विहार न्यू दिल्ली, कोई पंक्चुएशन कोई कॉमा नहीं है। देखिए सेंटेंस एड्रेस एक लाइन छोड़ के मैंने आज की डेट लिख दी है 21 जून 2020। आफ्टर डेट अगेन आफ्टर लिविंग वन लाइन आई हैव रिटन द रिसीवर्स एड्रेस। मैं एडिटर को लिख रहा हूँ द ट्रिब्यून के, द एडिटर द ट्रिब्यून न्यू दिल्ली। आपको न्यूज़पेपर का नेम देखना है, वो न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून था तो मैं उसी के एडिटर को लिखूंगा, कहाँ से पब्लिश हो रहा था उस जगह का नेम, the editor the Tribune New Delhi। you can also write the Chandigarh here, and after that dear sir this is the salutation। formal letters में जैसा मैंने आपको बताया कि dear word यूज होता है इन दिनों, and subject is problem of fuel price high। कौन सी प्रॉब्लम, वेरी ब्रीफ वेरी कैची सब्जेक्ट मैंने लिखा है कि प्रॉब्लम ऑफ फ्यूल प्राइस हाइक, जो फ्यूल प्राइस है उसमें इंक्रीज हो रही है उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए ये लेटर लिखा जा रहा है। सो द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ विल बी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। I am a resident of Mayur Vihar, New Delhi. Okay. Apropos of or with reference to। Apropos of का मतलब ही होता है with reference to, क्योंकि देखिए हमें क्या एक न्यूज़ आर्टिकल दिया गया है तो हमें उसी का रेफरेंस देना पड़ेगा कि apropos of or with reference to the article at public expense I want to highlight the issue of constantly increasing crude oil prices। तो कहता है कि उस न्यूज़ आर्टिकल के रेफरेंस में मैं क्या करना चाहता हूँ, जो लगातार क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उनके लिए उस मुद्दे को हाईलाइट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट इज this is an irony that as crude oil prices are at a historic low in the international market, the petrol and diesel prices have been hiked consecutively for 11 days, touching the highest level in over a year। तो देखिए एक आयरनी है, एक विडंबना है। कहता है कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके विपरीत हो रहा है। कैसे? कहता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो हिस्टोरिक लो पे है, मतलब इतने कम कभी नहीं आए, ठीक है। एक इतिहास आप ये कह सकते हो कि बना है ये कि कितने कम हुए वो प्राइसेस। और कहते हैं कि अभी हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है जी, पिछले 11 दिनों से लगातार जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कम हुए हैं। तो एक आयरनी हुई ना, विडंबना हुई। हम भी तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बेनिफिट हमें पास ऑन कर दिया जाए। तो कहता है कि एक साल के अंदर ये क्या हुआ कि टचिंग द हाईएस्ट लेवल इन ओवर अ ईयर, और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मतलब हो एक साल के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़े हुए प्राइसेस है ये जो अभी गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं। द मोमेंट, अब देखिए मैं सेकंड पैराग्राफ यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसको डेवलप कर रहा हूँ। The moment crude oil prices surge, the same are immediately implemented in India, as is understandable. But now when the prices have gone down drastically, the benefit is not being given to the consumers who are already physically, mentally and financially affected due to COVID-19। तो कह रहे हैं कि जी जैसे ही जो क्रूड ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में सर्ज होते का मतलब बढ़ते हैं, वो चीज़ तुरंत इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दी जाती है, मतलब इंडिया में भी रेट्स बढ़ जाते हैं ऑयल के, एज इज अंडरस्टैंडेबल। वो तो बात पता ही है कि होना ही है ऐसा। बट नाउ जब प्राइसेस इतने ड्रास्टिकली कम हो गए, इतने ज़्यादा कम हो, मतलब इतना रिड्यूस हो गया प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में, वो बेनिफिट कंज्यूमर्स को क्यों नहीं दिया जा रहा जो ऑलरेडी मारे हुए हैं कोविड-19 के, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली, तीनों रूप से। एंड दिस इज एन एडिशनल ड्रेन ऑन देयर पॉकेट हु आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू अर्न देयर लाइवलीहुड इन दिस ग्रिम पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड जॉब्स ले ऑफ। और कहते हैं कि ऐसे लोग जो इस
अनसर्टेनिटीज़ के पीरियड में जहाँ जॉब्स जा रही है लोगों की, ठीक है, वो अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब लोगों के पास जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है, ये उनकी पॉकेट पे एक और ड्रेन है, एक मतलब एडिशनल आप ये कह सकते हो बोझ है उनकी पॉकेट पे। ये जो ग्रीम पीरियड है ना, ये उदासी वाला पीरियड जो चल रहा है कोविड-19 का, तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे इसकी। नेक्स्ट पैरा, जो फाइनल पैरा में हम क्या करेंगे कि द एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी कंसिडरेट टुवर्ड्स द मासेज ऑल्सो एंड थिंक ऑफ देयर वेलफेयर इन दिस आवर ऑफ क्राइसिस। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है, उसको जनता के लिए, मासेस का मतलब जनता के लिए थोड़ा कंसिडरेट होना चाहिए, थोड़ा उनके लिए उनकी तकलीफें भी समझनी चाहिए। और जो ये आवर ऑफ क्राइसिस है ना, ये जो मुश्किल का जो दौर चल रहा है, इसमें उनकी भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। आई एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट कह सकते हो, आई एक्सपेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हो, आई एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर एंड डू द नीडफुल सो दैट द कॉमन मैन कैन हीव अ साई ऑफ रिलीफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार जल्दी इस मुद्दे का जो है, इस मुद्दे को ध्यान में लाएगी और जो भी उनसे बन पड़ता है वो करेगी, ताकि जो आम आदमी है वो चैन की सांस ले सके। उसके बाद आप थैंक यू लिखेंगे एंड देन यू विल पुट योर सिग्नेचर। अर्जुन नाम दिया था तो अर्जुन के सिग्नेचर यहाँ पे है, उसके बाद अर्जुन नेम कैपिटल्स में दिया हुआ है और उसके बाद लिख दिया कंसर्न सिटीजन। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन कि एक चिंतित जो है वो नागरिक, एक आम आदमी, ठीक है। सो दिस वॉज द योर लेटर बेस्ड ऑन you can say report or a newspaper article stimulus, and this is a new variant added by the CBSE this year. So I hope that you understood this topic, and if you like this video then please do share it and subscribe my channel English 360. Thank you.